बांद्रा जाफर बाबा कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी हिल रोड बांद्रा मुंबई महाराष्ट्र के रहवासियों के घर पर पड़ी हब टाउन बिल्डर एंड ठाकुर कंस्ट्रक्शन की बुरी नज़र। अपने कानूनी हक को बचाने के लिए रहवासियों ने अपॉइंट किया है मुंबई के दूर जाने माने वकील एडवोकेट प्रीतेश बुराड और एडवोकेट शाहिद शेख। जानते हैं पूरा मामला और इस मामले में रहवासियों के वकीलों का और खुद रहवासियों का क्या कहना है। जानकारी ऐसी कि अभी ये जो भी हो रहा है ये बांद्रा जाफर बाबा हाउसिंग सोसाइटी प्लॉट B911 के रहवासियों के साथ में जो भी हो रहा है ये बहुत गलत हो रहा है। ये इसके अंदर सोसाइटी के कमेटी मेंबर बिल्डर इन सब की मिली भगत है। कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। सोसाइटी की कमेटी मेंबर्स इस बारे में कुछ जानकारी नहीं दे रहे हैं सोसाइटी मेंबर्स को। बिल्डर की तरफ से कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। SRA की तरफ से कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है कि ये जो घर लिया जा रहा है इनसे तो इसके बदले में इनको कहाँ मिलेगा, क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा, कब मिलेगा। 30 साल से परिवार वहाँ रह रहा है। आज अचानक उनको कह रहे हैं कि अपना घर खाली करके डेवलपर को सौंप दिया जाए। वो कहाँ जाएंगे बिना किसी पक्के गारंटी के साथ में? कोई कानूनी गारंटी उनको नहीं दी जा रही है कि उनको क्या मिल रहा है। और इसी वजह से ये बांद्रा जाफर बाबा हाउसिंग सोसाइटी के रहवासी हमारे पास आए हैं और हम पूरे ज़ोर शोर से जो है उनकी कानूनी लड़ाई लड़ेंगे और उनको उनका हक दिला कर रहेंगे। उसके बारे में ब्रीफिंग करिए। जी हम माय नेम इज़ फ्रांसिस फर्नांडिस। आई स्टे इन द सेम कॉलोनी। मेरा नाम है रूम नंबर 3 and 4 मेरा है। So I reside here and for the past 50 years the structures have been there and this society colony has been existing for a very long time. So here what has happened, the developer and the society has got into a very big scam and made fraud over everything. So what we are here to prove is that to explain to everybody that this is wrong, what is right. So we are not getting our rights, that is why we have started with it. In 96 the developer came inside and he said that we are going to build in this 911, we will build your thing. And Prakash Thakur Construction had taken up this place and started this work, and Hubtown came inside in between, and then after that, from that day onwards till now, we are always being harassed. And the actual fact that they said that we will develop a place over here only and give you the new flat here only. तो हमारे agreement पे जो है हमारे पास अभी भी वही लिखा है कि we will not empty you from this property, we will make house here only and give you here only. उसके बाद में कुछ भी नहीं है. अभी they are exploiting our survey number and put it into some other place down, and they are amalgamating other societies where it is 908, 909 and we are 911. So 911 is getting nothing and हमारा पूरा वहाँ पर उन लोगों ने यूटिलाइज कर दिया है. And whatever they had utilized and now they say that you are not eligible and you all should leave from here and आपको हम लोग दे देंगे. फिर नोटिस बोर्ड डाल देते हैं, बोले 3 लाख रुपीज़ कॉम्पनसेशन. ऐसे करके हमारी यूनिटी तोड़ के हमारे से झगड़ा करके हमारे से थ्रेटन करके ऑल थिंग. And in this, there are a lot of support from other local bodies, politicians, and everybody. Nobody supports us because we are minority, we are poor people, they always say. But they don't know that we are educated people and we are qualified people. We can stand and face this matter properly with them. So they are taking us as absolutely nil. No people, you all are nothing in this place. We have got all the amenities. We have got toilet, bathroom, water, light, everything we have got. We have got all the proofs of all these things. But they still say you all are nothing. Society, secretary, chairman, the full entire body for 30 years they have stayed in one place and not moving. But even also we have given them letters saying that please vacate from this premises. Get out from this. You have given elections. For 30 years no election, nothing. And now at this very moment they are always instigating SRA and SRA and SRA. SRA के खंदे पे डाल के पूरा यहाँ पर बंगला बना रहे, बिल्डिंग बना रहे, सब कुछ बना. There are a lot of big, huge buildings come up here. So ultimately they are using SRA, and I am sure, I think, certain fact of this property and this land they themselves doesn't know. But this land 911 still belongs to government. The property card is still existing, and we are leasehold property here. Only one. We are governed by the Maharashtra Cooperative Housing Society Act Limited. We have our reason ने बताया गया. हाथ से उन लोग जो एनेक्सर है उसके ऊपर हाथ से लिखा जाए अनएलिजिबल. और अभी जो एग्रीमेंट्स दे रहे हैं उन लोग दे आर री एग्रीइंग, पुटिंग री एग्रीमेंट ये करके कि भाई री एग्रीमेंट जो होएगा उसके अंदर क्या बोलते हैं तो यूनिटी दिखाने के लिए
कि वी आर मेजॉरिटी आर दे कैन दैट स्कीम अभी जो 96 में था LOI एनहेंस करते 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 दे हैव कम टू दिस पर्टिकुलर स्टेज एंड सिंग वी हैव ऑलरेडी गॉट LOI. सो SRA उसको देने में क्या है, वो तो देते जाएंगे. बट द फैक्ट, एक्चुअल फैक्ट नाउ they are implicating the scheme by taking agreement from our 98 houses. वो एक decent home and a decent clarification from them. अगर हमको अगर जगह पे चाहिए अपन they give us a decent home, we will accept it. हमारा general body resolution जो है, please bring all that on documents and say कि भाई हमने we have accepted the developer and all that. So Uptown has never had any meeting with us. We don't know who is Uptown. They come, I am Chennai, I am from Uptown, I am, what is the next name he said? Rohit, Akruti, and then there's Pompi Thakur. He says, I am from Thakur Construction. You are from anywhere, but we don't recognize you. We जो locations के, हमारे जो ward के जो भी press, जो भी है politicians है, all are saying this is their dream project and they want to do it, वगैरह वगैरह वगैरह. So they are totally supporting these people. So with their support only this thing is happening. सिविल कोर्ट में चल रहा है, एपेक्स ग्रीवेंसी में चल रहा है. वी हैव अभी 30 डेज का जो नोटिस है, वी हैव आल्सो चैलेंज दैट 10 डेज का है, उसको वी हैव चैलेंज दैट आल्सो. आई ओनली से प्रे टू द थिंग दैट दे शुड नॉट जस्ट टेक द लॉ इन हैंड. If they take law in hand, I think they should have the proper punishment over it, and this punishment should definitely be granted by the government towards us, because we are proper governors of the government. हाँ, धमकी तो ऐसे आते रहते हैं, आप लोग साइन नहीं करेंगे तो कल बुलडोजर आ जाएगा, 10 तारीख को बुलडोजर आएगा. अभी ये जो डेड पर्सन के ऊपर जो नोटिस भेजा है, हम 96 में जब हमने ठाकुर कंस्ट्रक्शन से हम लोग ने साइन किया था, एंड दे वर अलॉन्ग विद अपटाउन, साथ में ही थे हम लोग, पहले से साथ में ही जा रहे हैं, बट वी नेवर न्यू अपटाउन कमिंग इन फ्रंट. अभी अपटाउन फ्रंट आ रहा है. सो दिस पोजीशन इज दैट कि इन लोग ने हमारे जो 98 लोगों में से सबको जो एग्रीमेंट बना के दिया था, उसमें से 85% लोग मर गए, 85 डेड. उसी 85 लोगों के ऊपर अभी भी नोटिस जारी कर रहे हैं कि काइंडली वेकेट दिस प्रेमाइसेस, इट हैज बीन डेंजर, इट हैज बीन दिस, ये वो सब वगैरह वगैरह वगैरह. सो दे आर यूजिंग ऑल दैट थिंग. और अभी जो 98 के LOI अभी तक चलाते जा रहे हैं. और अभी डिंडोशी कोर्ट पे जब हमारी हियरिंग हुई थी नोटिस ऑफ मोशन पे, तो वहाँ पर हमारे को डिक्लेयर किया गया था कि वी हैव मेड एन एग्रीमेंट इन 96, comply by the same agreement of 96, give us the same places. 96 में निकाला कि we will give you here only, यही part में 911 में, तो ये give us in 911, we are accepting 911, but तुम्हारी clarification, document, scheme, सब कुछ दिखाओ. our general body resolution जो हम लोग, अगर आपको आपके हाथ में हमने पूरा प्रोजेक्ट दे दिया, तो you have to show us. ये एक भी कुछ नहीं दिखा रहे. every document has been hidden up. Every document. Yeah, the first agreement they have mentioned that ये सब कुछ होने वाला है यहाँ पर. तो ना भी बोल रहा है कि we will give you all down, we will give you all there. अभी जो भी देता है तो वो भी तो दिखाओ ना, वो भी नहीं दिखा रहे. So we will at least be satisfied. सब चुप के हो रहे हैं. Everything is behind the screen. अभी ये प्लॉट बोलते हैं we will do soil testing. पूरी प्लॉट खाली कर दो, we will do soil testing. सॉइल टेस्टिंग होता ही नहीं ऐसी प्रॉपर्टी पे. इट हैज़ टू बी डन इन स्मॉल. अभी जब प्रोजेक्ट इतनी बड़ी बनाए तो उस टाइम पे जरूर सॉइल टेस्टिंग किया तुमने. सॉइल टेस्टिंग की रिपोर्ट अभी भी SRA में लगा हुआ है. सिटी गोल्ड आर्किट है, ये वो इंजीनियर वगैरह का, तो उसके ऊपर तुमने सॉइल टेस्टिंग किया हुआ है. सो सॉइल टेस्टिंग इज अप्रूव्ड बाय दिस SRA टू मेक बिल्डिंग. वो नीचे के स्कीम में, नीचे के प्लॉट में, हमारे प्लॉट में भी तुमने किया होगा, तो ठीक है, फाइन, इट्स ओके. बट नाउ वेयर यू आर गोइंग टू डू सॉइल टेस्टिंग, यू आर नॉट डूइंग सॉइल टेस्टिंग. ये प्लॉट पूरा खाली करके हम लोग कल रोड पे जाएंगे और बाद में बोले तुम्हारे को 2 साल बढ़ा दिया, उसी के अंदर हमने तुमको खरीद लिया. वी हैव परचेस्ड यू बिकॉज़ देयर इज अ थर्ड पार्टी हु इज पेइंग द ड्यूज नाउ. देयर इज अनदर कंपनी व्हिच इज कम इनसाइड हु आर गिविंग चेक फाइनेंस व्हाट इज चेक फाइनेंस एंड अवराधना इंफ्रास्ट्रक्चर. अवराधना इंफ्रास्ट्रक्चर का चेक दिया जा रहा है सबको. लाइक एग्रीमेंट अपटाउन बना रहा है एंड अभी कोई रिकॉर्ड ही नहीं है हु इज अवराधना इंफ्रास्ट्रक्चर. पब्लिक को नहीं मालूम है किसके नाम से आ रहा है चेक. टुमारो अवराधना इंफ्रास्ट्रक्चर विल कम एंड ये बोलेगा कि भाई अभी ये जो प्रॉपर्टी है हमने आपके 10 लाख में खरीद लिया, 9 लाख रुपीज में. यू कम, और वो सीधा बोल भी देते हैं कि मेरे से पैसा मत मांगने, गो टू योर बिल्डर हु इज द वन सोसाइटी. तुम्हारी सोसाइटी से मांग लो. एक ऐसे लोकली इन लोग सब मिले थे, बोले हम लोग आपको समझा देंगे, आपको करेंगे. सब लोग बैठ गए थे. तो उस टाइम पे बोलते बिल्डर क्या बोलते हैं, हमारे से मत मांगना, आपकी सोसाइटी सेक्रेटरी चेयरमैन है ना, उनसे जब मांग लेना, उन्होंने हमको ये प्लॉट बेचा है, यू आर नॉट गिवन मी. वो खुला वहाँ बोलते रहते हैं. तो
इसमें क्या है, जो ऑलरेडी जो झोपड़ा धारक गुजर गए हैं उन लोगों के नाम से नोटिस निकाली है। कुछ झोपड़ा धारकों ने ऑलरेडी घर बेच के गए हैं 10-20 साल पहले, उनके नाम से एसआरए ने नोटिस निकाली है, जबकि वो अभी वहाँ रह नहीं रहे। और इसमें जो एग्रीमेंट हुआ था पुराने डेवलपर के साथ में 98 में, जो कि कंसेंट 70% उस टाइम पे शायद उन्होंने लिया था, लेकिन आज जो है नए बिल्डर इसमें आए हुए हैं हपटाउन बिल्डर के रीडेवलपमेंट एसआरए स्कीम के लिए, जबकि ये सारी स्कीम अभी तक सारे डॉक्यूमेंट्स हमको दिए नहीं गए। हमने काफ़ी पत्र लिखे हैं और हमने काफ़ी बार आरटीआई भी किए हैं, लेकिन अभी तक हमको कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं मिले हैं। उसके लिए अपील फाइल कर दिया है। वो नोटिस ने जब ये ऑर्डर भी पास हो चुकी है एसआरए की 9 मई को, उसको हमने चैलेंज किया है अपील में, जो है एपेक्स ग्रीवेंस के पास। और हमने हाई कोर्ट में रिट पिटिशन भी फाइल किया है ताकि हमको जो है जल्द से जल्द हमको प्रोटेक्शन मिला जाए, इसीलिए हम कोशिश कर रहे हैं। अपटाउन के अगेंस्ट में बैंक्रप्सी का कंपनी पिटिशन भी पेंडिंग है एनसीएलटी में। अपटाउन के अगेंस्ट में एमआईडीसी पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर भी रजिस्टर हुई है। वहाँ के भी एसआरए स्कीम के कोई झोपड़ा धारकों ने उनके अगेंस्ट एफआईआर किया हुआ है और उनके अगेंस्ट काफ़ी बार पहले भी क्रिमिनल एक्शंस हुए हैं। तो इसीलिए ये झोपड़ा धारक बहुत डरे हुए हैं कि ऐसा अगर बिल्डर का रिकॉर्ड है तो ये क्या हमको घर दे पाएगा।